The first numerical says an aeroplane lands at 180 km per hour and stops after covering a runway of 2 km. So here you can see this is the initial speed of the aeroplane, the speed at which it lands. So that's the initial velocity represented by u. Now this initial speed is in kilometer per hour, so we can convert into meter per second. So when you divide it, you will be getting it as 50 meter per second. So that's the initial speed given to you. Now the airplane stops, so you can say final speed is 0, and before stopping it is covering a runway of 2 km. So that is the distance covered, 2000 meter. So this is the information given to us, and now with this information we have to calculate the acceleration. To calculate the acceleration, let's apply the formula. Here v is 0, u is 50, into s is 2000. So this will give you 2500, this will give you 4000 a. So this will be transferred this size, minus 2500 is equal to 4000 a. Now let's calculate it. So a is equal to minus 2500 upon 4000. Reduce it by 5, so 5 upon 8. So when 5 is divided by 8, you will be getting 6.625 meter per second square. So this is the acceleration. So as you can see that acceleration is negative, so we can say that there was retardation. Okay, next what we have to calculate, the time it takes to come to rest. So time taken to come to rest, so we can now use this formula. Here v is 0, u is 50, acceleration you have calculated negative 0.625, and time you have to calculate. So transfer it this side. So t is equal to 50 upon, when you remove the decimal, so reducing it by 25 twos are 25 into 25, 40 times, so the time taken will be 80 seconds. This is clear to you now? Okay, now let's see in the second numerical. They are saying a cyclist driving at 36 km per hour picks up a velocity of 72 km per hour. So this is the initial, this is the final speed, and the distance is of 50. As you can see, initial speed is given in kilometer per hour, so we can convert it into meter per second. Final is 72, converting it into meter per second, 20 meter per second. So we have got the initial speed and we have got the final speed, and for this the distance covered is 50 meter. So in the first part we need to calculate the acceleration. So let's calculate the acceleration. So we can use the formula v square is equal to u square plus 2as. Here v is 20, u is 10, acceleration is not known to us,
distance is 50. So 400, this will be subtracted, minus 100, this will give you 100A. So 100A is equal to 300. So A is equal to 3 meter per second square. So this is the acceleration. Now second part, they're saying you have to calculate the time in which the cyclist picks up the above velocity. So we need to calculate the time, okay, using the formula. V is 20, U is 10, A is 3. So this will give you 20 minus 10, that is 10. So from here you can get time taken 10 upon 3. That can be written as 3 whole number 1 upon 3, or you can write it in decimal, 3.33 seconds. Now here the question says a motorbike running at 18 km per hour picks up a velocity of 108 km per hour in 5 seconds. Okay, so again you can see initial speed given to you is in kilometer per hour. So we have converted it into meter per second. Final speed is also in kilometer per hour. Converting it into meter per second. And the time given to you is 5 seconds. First of all, you need to calculate the acceleration, right? So we can apply the formula. V is equal to U plus 80. V is 30. U is 5. Acceleration to be calculated, time is 5. Now this will give you 30 minus 5 will give you 25 is equal to 5A. So from here you can get A as 25 upon 5 meter per second square. That's the acceleration. Now we need to calculate the distance covered. So we can apply the formula. S is equal to ut plus half at square. U over here is 5. Time taken is 5. Acceleration is 5. Time is 5. So this will give you 25. Plus this will give you 5 square 25 up into 5, 125 upon 2. This can be written as 25. 25 divided by 2 will give you 62.5. So the distance covered will be 87.5 meter. This will be the distance covered. Okay, now see the fourth one. A motor car slows down from 108 km per hour to 36 km per hour over a distance of 80. So as you can see, this is the initial speed given to you, which is in kilometer per hour. So we can convert it into meter per second. Then we have the final V, 36 km per hour. So we will convert it into meter per second. And it is, brakes are applied. So we have to calculate, distance is given 80 meter. In the first part we have to calculate the retardation produced. Okay, so let's apply this formula. V over here is 10, U is 30 and A is 80. This will give you 100 is equal to 900
plus 160a. Now this will give you 100 minus 900 will give you minus 800 is equal to 160a. So from here we are getting acceleration in negative. So as the question says, see, you have got acceleration in negative. So acceleration in negative means this is retardation. So the question says find the retardation. So the retardation is equal to 5. As you are using, see, as you are using the word retardation, so don't use the minus sign here. Now see the second part that is very important. They say you have to calculate the total time in which the car comes to rest. अब इसमें एक चीज़ नोट करिए, यहाँ पे कह रहा है the car comes to rest. ये चीज़ देखिए. Now as the car is coming to rest, so that means final velocity will be 0. Initial velocity तो यही रहेगी 30, है ना. इनिशियल वेलोसिटी तो 30 ही रहेगी, लेकिन अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि टाइम निकालना है व्हेन द कार कम्स टू रेस्ट. तो अब कार को अगर रेस्ट में ला रहे हैं तो फाइनल वेलोसिटी हमें 0 लेनी होगी. एक्सेलरेशन वही आएगा जो था -5. अब आपको टाइम कैलकुलेट करना है. सो v इज इक्वल टू u प्लस 80. v है 0, u है 30, a आया है -5. तो -5t ये इधर आके हो जाएगा +5t. तो टाइम टेकन टू कम टू रेस्ट इज 6 seconds. So in 6 seconds it comes to rest. Now see in question number 5 they say a stone thrown vertically upward takes 4 seconds to return. अब देखिए स्टोन जो है यहाँ पे अगर कोई भी बॉडी ऊपर जाकर के नीचे आती है, पहले ऊपर गई फिर नीचे आई, तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो नीचे आने में लेगी. तो यहाँ पे देखिए स्टोन ने जो टाइम लिया है वो है 4 seconds ऊपर जाना और नीचे आना. टोटल टाइम लिया है 4 seconds. तो आधा इसका हो जाएगा ऊपर जाने का, आधा हो जाएगा नीचे आने का. यानी कि ऊपर जाने में टू द हाईएस्ट पॉइंट इसने टाइम लिया है 2 seconds. तो हम यहाँ पे अपना कैलकुलेशन दिखाएंगे. वाइल ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, जब स्टोन ऊपर की तरफ जा रहा है, वाइल ट्रैवलिंग अपवर्ड्स, और वो भी कहाँ तक जा रहा है, टू द हाईएस्ट पॉइंट, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहा है. क्योंकि देखिए अगर आप स्टोन को नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो पहले स्टोन नीचे से ऊपर जाएगा, अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद तब ये वापस नीचे आएगा. तो जितना टाइम ये ऊपर जाने में लेगा उतना ही नीचे आने में लेगा. तो टोटल टाइम है 4 seconds. तो इसका मतलब इसने ऊपर जाने में टाइम लिया होगा 2 seconds. तो हम यहाँ कैलकुलेशन कर रहे हैं वाइल ट्रैवलिंग अपवर्ड टू द हाईएस्ट पॉइंट. तो टाइम हम लेंगे 2 seconds. अच्छा, चूंकि स्टोन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच करके ये स्टोन मोमेंट्री रेस्ट पे आ जाएगा और तब ये नीचे आना शुरू करेगा. तो मतलब ऊपर जाते वक्त जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0. अच्छा, बॉडी अगर ऊपर जा रही है तो उसमें होगा रिटार्डेशन. तो जितना ग्रेविटी है वो नेगेटिव में ले लोगे आप. रिटार्डेशन नेगेटिव. जब बॉडी ऊपर जा रही है तो उसमें रिटार्डेशन होगा ग्रेविटी की वजह से. तो जितनी ग्रेविटी दे रखी है वो नेगेटिव में ले लो आप. अब ये इन्फॉर्मेशन है मेरे पास जब स्टोन ऊपर जा रहा था. तो इन्होंने कहा है कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी, मतलब u. तो v तो 0 है, u हमें कैलकुलेट करना है. a है -10 ऊपर, u -20, तो इधर आ जाएगा तो +20. तो ये आ गई उसकी इनिशियल स्पीड, मतलब जिस स्पीड से स्टोन को ऊपर थ्रो किया गया था.
20 मीटर पर सेकेंड। अब एक चीज़ और निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, कि किस हाइट तक वो पहुंचा, मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए मतलब जितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लें, एस निकालना है। तो u इनिशियल वेलोसिटी 20 है, ऊपर जाने में टाइम लिया है 2 सेकेंड्स का, ऊपर जाने में है रिटार्डेशन तो -10, टाइम है 2, ये हो गया 40। पहली बात तो प्लस माइनस इज माइनस, 2 का स्क्वायर 4, 4 से ये 2 डिवाइड 2 इंटू 10 20। सो कितना डिस्टेंस ऊपर जाएगा, ये 20 मीटर। यही आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन। सो द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड विल बी 20 मीटर। ओके, आप देखिएगा 6th न्यूमेरिकल में क्या कहा गया है, अ स्पेस शिप इज मूविंग इन स्पेस विद अ वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर सेकेंड। देखिएगा यहाँ पे वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करने की मिस्टेक मत करिएगा। 5/18 से तब मल्टीप्लाई करते हैं जब वो किलोमीटर पर आवर में हो, ये किलोमीटर पर सेकेंड है। तो ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 60 किलोमीटर पर सेकेंड। इट्स इंजन फायर्स फॉर 10 सेकेंड्स। अब 10 सेकेंड के लिए उसका इंजन फायर कर रहा है। अच्छा, जितनी देर के लिए इंजन फायर करेगा उतनी देर उसमें एक्सीलरेशन होगा। तो इंजन फायर किया है 10 सेकेंड के लिए, तो इसका मतलब इसमें एक्सीलरेशन जो होगा वो 10 सेकेंड्स के लिए होगा, और उस 10 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करके कहाँ पहुँच जा रही है, 80 पे। तो फाइनल वेलोसिटी हो जा रही है 80 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, अब आपको यहाँ पे निकालना है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हाफ मिनट। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन हाफ मिनट का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकेंड्स। अच्छा, इसमें अगर आप देखिए तो जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए है, क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल पढ़िए तो इंजन फायर्स फॉर 10 सेकेंड्स, इंजन की जो फायरिंग है वो सिर्फ 10 सेकेंड्स की है, तो एक्सेलरेशन सिर्फ 10 सेकेंड्स तक के लिए होगा। चलिए पहले एक्सेलरेशन निकाल लें इसका। तो v है यहाँ पे 80, u है 20, a निकालना है, टाइम है 10, तो सॉरी ये 60 है। अब ये इधर आके माइनस हो जाएगा तो इधर बचेगा 20। यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, तो एक्सेलरेशन होगा 2। अच्छा, यूनिट इसी स्पीड के हिसाब से लगेगी, तो यूनिट है किलोमीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन आएगा 2 किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगी। ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी देर था, 10 सेकंड्स। तो हम ये भी निकाल लें कि जितनी देर एक्सेलरेशन रहा उतनी देर में इसने कितनी डिस्टेंस कवर कर लिया उतनी देर में। तो चलिए अब निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड है उसकी 60। अच्छा, एक्सेलरेशन कितनी देर के लिए रहा, 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन है 2, टाइम है 10, यह आएगा 600, 2 and 2 will cancel out to plus 100, तो 700 किलोमीटर। तो ये तो हो गया उसका डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, ये डिस्टेंस कवर किया उसने 10 सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन सिर्फ 10 सेकंड के लिए था, क्योंकि जो इंजन था वो फायर हुआ था ओनली फॉर 10 सेकंड्स। अब आगे के 20 सेकंड्स तो और बचे हैं, क्योंकि आपको डिस्टेंस ट्रैवल निकालना है इन हाफ मिनट। हाफ मिनट का मतलब हुआ आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 30 सेकंड्स। तो आपने 10 सेकंड्स का तो निकाल दिया। अब 10 सेकंड्स के बाद क्या होगा, अब ये समझिएगा।
आफ्टर 10 सेकेंड्स, क्योंकि इंजन की जो फायरिंग हुई है वो सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए हुई है। सो आफ्टर 10 सेकेंड्स देयर इज़ नो एक्सेलरेशन, क्योंकि इंजन फायर करना बंद कर दे रहा है। देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। अब अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब आफ्टर 10 सेकेंड्स जो बॉडी है वो मूव करेगी विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। अच्छा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है तब अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं यहाँ पे। तो अब आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करोगे? स्पीड इनटू टाइम। तो हम ये देखें कि स्पेस शिप की जो इनिशियल स्पीड थी वो थी 60, लेकिन उसका इंजन फायर करता है 10 सेकंड के लिए और उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है 80। फिर इंजन फायर करना बंद कर देता है। अब इंजन अगर फायर करना बंद कर देगा तो वेलोसिटी ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा होगी, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्पेसशिप मूव करेगी। तो स्पेसशिप की जो वेलोसिटी है वो 80 हो चुकी है। पहले तो 60 थी, पर इंजन फायर किया तो वो हो गई है 80। अब इंजन ने फायर करना बंद कर दिया, तो अगर इंजन ने फायर करना बंद कर दिया तो वेलोसिटी ना तो कम होगी ना तो ज़्यादा। अब वो 80 की यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो अब स्पीड आप लेना 80 और टाइम कितना है? 20 सेकेंड्स, क्योंकि आपको डिस्टेंस निकालना था इन हाफ मिनट, मतलब 30 सेकेंड्स। तो 10 सेकेंड्स का तो आप निकाल चुके हो डिस्टेंस, उसके आगे 20 सेकेंड्स और है, तो 1600 किलोमीटर। तो देखिए अब आप शुरू के 10 सेकेंड्स में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 700 किलोमीटर, और उसके बाद जब एक्सेलरेशन बंद हो गया तब उसने डिस्टेंस कवर किया है 1600। तो अब हमें निकालना था टोटल डिस्टेंस इन 30 सेकेंड्स। तो ये डिस्टेंस है 10 सेकेंड्स का, प्लस ये डिस्टेंस है 20 सेकेंड्स का, तो ये मिला कर के हो गया 2300 किलोमीटर। सो 2300 किलोमीटर। होप समझ में आ गया होगा ये चीज़। ओके, सी नाउ न्यूमेरिकल नंबर 7। अ साइक्लिस्ट इज साइकिलिंग एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी इनिशियल स्पीड है फॉर 12 सेकेंड्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो साइक्लिस्ट साइकिल कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कर रहा है, मतलब ना तो स्पीड बढ़ रही है ना तो स्पीड कम हो रही है। कितनी देर के लिए? 12 सेकेंड्स के लिए। ही देन स्टॉप्स पैडलिंग एंड द साइकिल कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 8 सेकेंड्स। उसके बाद वो पैडलिंग अपनी रोक दे रहा है। अब पैडलिंग रोक दे रहा है तो धीरे धीरे उसकी साइकिल की स्पीड कम होने लगेगी ड्यू टू फ्रिक्शन। तो और फाइनली उसकी साइकिल बता रहा है कि 8 सेकेंड्स में रुक जाती है। तो अगर यहाँ पे आप देखिए तो शुरू के जो 12 सेकेंड्स हैं उसमें यूनिफॉर्म स्पीड है, और उसके बाद के जो 8 सेकेंड्स हैं उसमें रिटार्डेशन है क्योंकि स्पीड कम हो रही है। अब ये कह रहा है ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ो तो इसमें आपको दो टाइप के मोशन दिखाई दे रहे हैं। शुरू में आपको दिखाई दे रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इसमें रिटार्डेशन। तो हमको बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस हो गया, ये हमारी टाइम एक्सिस हो गई। देखिए टाइम हमने ले लिया सेकंड्स में, वेलोसिटी ले ली मीटर पर सेकंड्स में। अच्छा, शुरू में कह रहा है कि जो वेलोसिटी है वो कितनी है? शुरू में बताया जा रहा है कि जो वेलोसिटी है वो है 30, और ये वेलोसिटी 30 कितनी देर के लिए है? आप देखिए तो इसमें कहा गया है कि ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड ना 12 सेकेंड्स के लिए, यानी कि जब टाइम आप यहाँ पे शो करोगे, ये देखिए
यहाँ पे मान लीजिए आपने टाइम शो किया 12 सेकेंड्स, तो 12 सेकेंड्स तक मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी हमने ले ली 30, तो 12 सेकेंड्स तक के लिए वेलोसिटी 30 है, ना तो कम हो रही है ना तो ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब जो आपका ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये देखिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये बनेगा ग्राफ 12 सेकेंड्स के लिए। ये हो गया ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है मतलब वेलोसिटी ना तो कम ना तो ज़्यादा, एक पैरेलल लाइन बनती है टाइम एक्सिस के। उसके बाद ये रेस्ट पे आता है, और रेस्ट पे आता है इन नेक्स्ट 8 सेकेंड्स। तो हम 12 सेकेंड्स के आगे अगर 8 सेकेंड्स प्लॉट करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। और अब ये रेस्ट पे आ जाएगा, ऐसे करके ग्राफ ही नीचे आ जाएगा। तो ये जो ग्राफ हमने बनाया शुरू में, ये बनाया हमने जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा था, और उसके बाद इसमें रिटार्डेशन हुआ और वो कम्स टू रेस्ट। तो फर्स्ट पार्ट तो आपका ये था, ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। देखिए पहले यूनिफॉर्म स्पीड और उसके बाद रिटार्डेशन। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द एवरेज रिटार्डेशन। अब हमें रिटार्डेशन कैलकुलेट करना है। अब अगर आप ग्राफ को देखो तो आपको जो रिटार्डेशन है, अगर मैं ग्राफ की नेमिंग करूं तो ए से बी तक तो यूनिफॉर्म स्पीड दिखाई दे रही है, और बी से सी ये आपको रिटार्डेशन दिखाई दे रहा है। अब कहा है कैलकुलेट द रिटार्डेशन। तो जब हमें रिटार्डेशन निकालना होता है तो रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि निकालते हम एक्सेलरेशन है वो आएगा नेगेटिव। अब एक्सेलरेशन निकालने का तरीका क्या था, अगर मुझे यहाँ पे चाहिए एक्सेलरेशन तो मुझे निकालनी पड़ेगी यहाँ पे स्लोप। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे स्लोप ऑफ बी सी। अच्छा, किसी भी स्ट्रेट लाइन की स्लोप निकालने के लिए फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब हम BC के ऊपर 2 पॉइंट लेंगे। पहला पॉइंट है B, तो यहाँ पे जो भी x और y की वैल्यू होगी वो आपका कहलाएगा x1 y1। तो अगर आप देखिए B पे x की वैल्यू है 12, तो आप बोल सकते हैं कि x1 तो यहाँ 12 है, और y की वैल्यू है 30, तो y1 है 30। C को देखिए, अब आप C के लिए क्या है, C सेकंड पॉइंट है। तो यहाँ पे अगर आप x की वैल्यू देखिए तो x की वैल्यू तो है 20, और अगर हम y की तरफ देखें तो y की वैल्यू है 0। इसमें पुट कर दीजिए आप y2 माइनस y1, तो 0 में से माइनस करोगे 30, x2 माइनस x1 तो 20 माइनस 12, तो ये ऊपर आएगा माइनस 30, नीचे आएगा 8। सो 30 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास नेगेटिव में एक्सेलरेशन आ गया, और अगर नेगेटिव में एक्सेलरेशन आता है तो उसको कहा जाता है रिटार्डेशन। तो अगर हम यहाँ वर्ड रिटार्डेशन यूज़ करें तो फिर माइनस साइन नहीं शो करेंगे। तो रिटार्डेशन इज इक्वल टू 3.75, ये आ गया रिटार्डेशन। देखिए अब क्या कह रहा है, डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ये हिस्सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब अगर मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है तो इसका डिस्टेंस निकालने के लिए इस पोर्शन के नीचे का मैं एरिया निकाल दूंगा। इस पोर्शन के नीचे का हम एरिया निकाल दें। चलिए, तो इसका जो एरिया आएगा वो कहलाएगा डिस्टेंस कवर्ड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसके लिए मुझे एरिया निकालना, तो मैं जिस फिगर का एरिया निकालूँ उसको कुछ नाम दे दूँ, ए बी, इसको नाम दे दें एम।
इसको नाम दे दें n। तो मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ABMN। अब जो आपका ABMN है, देखिए रेक्टेंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी लेंथ हो गई 12 और ये इसकी ब्रेथ हो गई 30। 360 मीटर। तो देखिए ये थी यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड से उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 360 मीटर। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, देखिए डिस्टेंस कवर्ड विथ वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा देखिए, जहाँ कहीं पे भी एक्सेलरेशन होता है या रिटार्डेशन, वहाँ स्पीड बढ़ती है या घटती है, तो उसको हम बोल सकते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ पे रिटार्डेशन है, तो यहाँ पे है वेरिएबल वेलोसिटी ये। तो इसमें डिस्टेंस निकालना है। देखिए डिस्टेंस जहाँ भी निकालना होगा वहाँ पे आपको हमेशा एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप निकालोगे एरिया। अब ये दिखा रहा है आपको रिटार्डेशन, तो इसके नीचे का एरिया निकाल दो, क्योंकि इन्होंने कहा है आपसे कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड विथ वेरिएबल वेलोसिटी। तो जहाँ रिटार्डेशन है वहाँ वेरिएबल वेलोसिटी है, तो तुम्हें यहाँ का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम इसका एरिया निकालो। इसका एरिया निकालते हैं। हमें निकालना है डिस्टेंस कवर्ड विथ वेरिएबल वेलोसिटी। तो यहाँ का एरिया, तो इसका नाम है BMC। BMC ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालोगे आप? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ये हो गया 8, फिर 12 से 20, तो ये 8 हो गया, इंटू हाइट, ये हाइट है BM, तो ये वर्टिकल हाइट है, तो ये इधर लोगे तो ये 30 के बराबर हो गया। सो डिस्टेंस कवर्ड विथ वेरिएबल स्पीड, तो 120 मीटर। अच्छा, लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी। अब हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए आप लोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस, आप इन दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दीजिए। एक पार्ट में 360 था, दूसरे में 120 था, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले पार्ट में टाइम था 12 सेकेंड्स और दूसरे वाले में था 8 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम हो गया 20। तो इसको ऊपर ऐड करेंगे तो आएगा 480 अपॉन 20, तो 24 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया हो ना?